So after talking about basics of weight training part 1, in that we talked about the differentiation of exercises when it comes to movement. कैसे differentiate किया था हमने? Dual axis, singular axis. Then we had multi-joint, single joint movements. Then we have unilateral, bilateral. Then we have isolation. After differentiating movements on those terms, now we are going to talk about different things in part 2. That is line of gravity, line of tension. फिर हम लोग बात करेंगे about the criteria that you can choose, that you can use to uh, select machines for workout. कौन सा concept use होता है? Like a very basic example, I'll tell you what is the difference between standing calf raises and seated calf raises. Why was it invented? कौन सा exercise और कौन सा muscle group एक muscle group के पहले क्यों लेना चाहिए, and all of those things. So let's talk about these things in basics of weight training part 2. So starting with first topic we are going to talk about is line of movement. LOM we'll say short form, and line of resistance. What is line of movement and line of resistance? आप बताओ what is the difference between incline, decline and fly? Incline, decline and flat. आपका सिर्फ angle of the bench change हो रहा है. When the angle of the bench changes, the angle of the line of resistance changes, right? So let's say जब भी आप bench press मार रहे हो in a flat bench, this is the line of movement and this is the line of resistance. They both are usually same. Incline जा रहा है, again upper pecs are getting involved. Decline जा रहा है, you are like pecs में there is major and minor. Flat and decline usually targets the same muscle, but you guys still do it. Sure, I don't do it, but again, right? Line of movement, line of resistance. One particular exercise where a lot of people don't understand this concept is up whenever you are trying to train your reverse delts. मैंने देखा है लोगों को they are doing this, they are doing something else. No, what is the ideal way to target a rear delt is the line of movement should be equal to line of resistance. आपका rear delt का काम क्या है? इधर से पीछे आना ना. So it should be in a straight line और वहां से ही पीछे आना चाहिए. Of course elbow going slightly up और इस तरीके से. The entire concept being line of movement should and line of resistance are always in the same path. तो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स से आप बैक मार रहे हो, राइट? बैक मारते हो, यू आर सेइंग लेट पुल डाउन, ये स्ट्रेट अप इरेक्ट बैठ के मारे और शैल आई लीन इट बैक. नाउ अगेन राइट, आप थोड़ा लीन बैक करोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल दैट विल गेट इन्वॉल्व. व्हाई? अगेन लाइन ऑफ मूवमेंट चेंज हो गया. सो अगेन राइट, दैट इज योर decision to make of what you want to train. But the concept being line of movement and line of resistance is always in a straight line. Correct? Now one more concept. Let's say कि आपको समझ नहीं रहा है what equipment to use. I talked about equipments, right? Equipment to use. What is, for example, side lateral. Side lateral dumbbell पे अच्छा है या केबल पे अच्छा है? What is the difference? So I'll explain to you. जब भी आप डंबल पे मारते हो ना, नाउ इन अ वेरी बेसिक सेंस बोलने जाए तो डंबल पे यू कैन लिफ्ट हेवियर. व्हाई कैन यू लिफ्ट हेवियर? बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ मोमेंटम दैट यू कैन ब्रिंग इनटू प्लेस, राइट? वो मोमेंटम निकालना है तो क्या करने का? सीटेड मारो. ओके, बट क्या होता है ना, एग्जाम्पल इन अ डंबल द रेजिस्टेंस इज ओनली देयर इन व्हेन द वेट मूव्स ग्राउंड से अपवर्ड्स, राइट? रेजिस्टेंस सिर्फ अपवर्ड है. अगर वो साइडवेज मूव हो रहा है तो रेजिस्टेंस है क्या? यहाँ पे आपको कुछ एफर्ट लग रहा है क्या? नॉट रियली. एफर्ट कहाँ पे लग रहा है? when you are moving beyond this point, right? So when the movement is going upwards, it shows resistance. Cool. So whenever you are using a dumbbell for a side lateral over a cable, आपका जो नीचे का मूवमेंट है ना, whenever you are doing this much, that is irrelevant. Why? No resistance in there, right? Resistance है ही नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी आप एक केबल यूज कर रहे हो, करेक्ट? आप केबल पे क्या हो रहा है? केबल पे इवन दो यू आर मूविंग इट हियर,
there is a weight stack in place, right? Weight stack का movement is always upwards, correct? तो वेट स्टैक का मूवमेंट तो अपवर्ड है, तो इवन दो आप ये छोटा सा मूवमेंट कर रहे हो ना, इन दैट भी आपका जो भी वेट आप उठा रहे हो उतना वेट ऊपर जाता है. सो देयर इज अ रेजिस्टेंस राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द वेट स्टैक व्हेन यू आर डूइंग अ साइड लेटरल. ओवर डंबल पे नीचे का रेंज इररेलेवेंट हो जाता है. सो वेट स्टैक पे देयर इज कंटिन्यूअस टेंशन. व्हाई? Because line of movement and line of resistance are together. For example, even in leg extension, शुरुआत से ही पूरा मसल कंट्रीब्यूट होता है. एंड दैट इज अगेन वन मोर ग्रेट एग्जांपल, डंबल फ्लाइज, केबल फ्लाइज. डंबल फ्लाइज में क्या है, ऊपर का जो मूवमेंट है वहां पे यू विल नॉट फील एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं. जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है. वाइल इफ यू डू अ पेक फ्लाई, वहां पे क्यों रेजिस्टेंस आता है? बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मूवमेंट आपका वेट स्टैक इज इनकॉर्पोरेटेड टिल द वेरी एंड, और आप छोड़ते हो. दैट इज वाई यू विल ऑलवेज फील मोर टेंशन ऑन द मसल्स ऑन अ पेक फ्लाई मशीन ओवर अ डंबल फ्लाई. हाँ भाई, आर्नोल्ड करता था, but that time the science was not that developed. Now there are so many concepts that invalidate their entire outlook of lifting, but a very basic thing, डंबल के ऊपर, केबल के ऊपर डंबल कभी प्रिफर करने का ओनली व्हेन दिस सिचुएशन इज नॉट देयर. अगर केबल के ऊपर एक कंटिन्यूअस लाइन ऑफ टेंशन है, दैट इज व्हेन यू शुड प्रिफर अ केबल, बिकॉज इसके ऊपर भी आप हैवी जा सकते हो ना. एंड यू यूजुअली गो ऑन डंबल्स हैवी बिकॉज यू हैव एन एरिया टू चीट जो यहाँ पे नहीं मिलता है. डंबल पे आप जर्क दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे मशीन पे आप वो नहीं कर सकते हो. मशीन्स आर मोर स्टेबल, मोर कंट्रोल्ड, राइट? पेक्सलाई में कैसे चीट करोगे? इट इज लाइक जस्ट सीटेड एंड यू जस्ट कैन मूव. आपका अपर बॉडी मूव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज सपोर्टेड. सो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंशन आता है. सो यू चूज अ केबल और अ वेट स्टैक ओवर डंबल वेर एवर यू कैन, राइट? एज दिस इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग और हाइपोट्रॉफी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, मैं एक जनरल पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस कोर्स. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड CNS रिक्रूटमेंट, राइट? व्हाट इज द टॉपिक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिक्रूटमेंट. व्हाट इज एन एग्जांपल? आप देखते हो पावर लिफ्टिंग एंड ऑल में पीपल विथ लेस बॉडी वेट लिफ्ट so much amount of muscle, so much amount of weight, sorry. तो उसमें क्या होता है ना, पावर लिफ्टिंग में व्हाट इज द रेशियो यूजुअली दैट एवरीबॉडी सीक्स, कि आपके बॉडी वेट के कितना एक्स टाइम्स आपने वजन उठाया, करेक्ट? सो हाउ व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट? दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट CNS रिक्रूटमेंट. मतलब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन द लास्ट टॉपिक वी टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना एफिशिएंटली अपने बॉडी को रिक्रूट कर रहा है टू पुश मोर वेट. लिसन टू दिस अगेन वेरी केयरफुली. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना एफिशिएंटली आपके बॉडी को रिक्रूट कर रहा है टू लिफ्ट मोर वेट. So whenever somebody has a smaller musculature, he has more potential to recruit its entire body more optimally. क्या समझा? जब भी बॉडी छोटा रहेगा तभी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोर एफिशिएंटली रिक्रूट करेगा ओवर अ लार्जर बॉडी. तो जो मस्कुलेचर में छोटे रहेंगे दे कैन लिफ्ट एक्चुअली मोर हेवियर by the calculation of their body weight over somebody who is more heavier. Got it? That is the basic concept behind CNS recruitment, right? One more thing, कि आप, I understand a lot of you guys just go to the gym for the aesthetic front of it, the आपका, but then this course, whenever a personal training course is made, वो बनता है taking into consideration a general population.
जनरल पॉपुलेशन मैं बोलूंगा तो ऑलवेज थिंक अबाउट सम मैन और मेल और फीमेल इन हिज 50s और 60s, राइट? एक जनरल पॉपुलेशन को ट्रेन करने के लिए वो कोर्स बनाया जाता है. इट इज नॉट लुक्ड एट एज लाइक समथिंग अ यंगस्टर can do, right? But of course they can do, but why I'm saying this is because next topic I'm going to talk about is functional functionality of a movement. For example, आप everything should not just be for hypertrophy, something should just be for functional strength also. आपको आपका पूरा बॉडी रिक्रूट करना भी आना चाहिए, बिकॉज इन रियल लाइफ जब भी यू आर ट्राइंग टू पिक अप अ हैवी ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू पुट इट, फॉर एग्जाम्पल एक हैवी बैग है, जमीन से उठाना है, गाड़ी के ऊपर रखना है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुश समथिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुल समथिंग, आपका पूरा बॉडी रिक्रूट होता है. पेक डेक इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी. बाइसेप कर्ल्स आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व योर एंटायर बॉडी, राइट? तो बाइसेप कर्ल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को हाथ में ले रहे हो, दैट इज देयर, बट देन इट इज मोर प्रोबेबल कि आपको यू विल हैव टू मूव अराउंड विद इट, राइट? तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, और रेदर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, कि बॉस आपको फंक्शनल एक्सरसाइजेस भी करने हैं. सो फंक्शनल एक्सरसाइज लाइक क्लीन एंड जर्क, स्नैच, एंड उससे क्या होता है ना, इफ द मूवमेंट इज फंक्शनल दैट कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. वहां पे भी आपको वो यूज करने आना चाहिए. तो चूज एक्सरसाइजेस विच आर नॉट ओनली फॉर हाइपरट्रॉफी बट ऑल्सो फॉर फंक्शनल. उससे क्या होता है, फंक्शनलिटी से देर इज मोर ऑफ इपॉक इन टू प्लेस. व्हाट इज इपॉक? excess post exercise oxygen consumption. Whenever a movement is functional, for example squats, let's say whenever you are talking about squats or let's say leg extension, epoch into squat would be more because it is the function and your entire body is getting recruited into it, right? So whenever you are choosing an exercise, if the exercise is not just for hypertrophy but it is even for a functional use, there is more epoch. Epoch leads to more caloric usage after your workout. Listen again. Epoch, post exercise oxygen consumption, leads to more caloric usage after your workout also. मतलब वर्कआउट किया तभी तो कैलोरीज बर्न किया ही, घर जाके when your body is trying to recover from that workout तभी भी कैलोरीज बर्न हो रहा है, right? Epoch is the main reason why weight training is preferred over cardio for fat loss. Weight training will always be effective over cardio for fat loss. Why? Because of epoch. Okay. So the fourth topic is epoch. Excess post-exercise oxygen consumption. Got it? So this is the last topic of this part 2 of weight training. Now I will take you into the part 3. Part 3 में मैं बताऊंगा how the machines are selected, how the exercises are selected, why are certain exercises or certain muscles done before the other body parts, उससे क्या effect आता है, and how the major body part lacks, right? See you in the next one.